Hello everyone, hope you are well. So, today we are going to discuss very important phase of compiler which is known as code optimization. So, in earlier video lectures we have seen intermediate code generation and various types of instructions. We have converted those instructions into threadless code. So, this is the main diagram of code optimization. So, the input of code optimization is intermediate code which we have generated already, and output of code optimization is optimized code. So this optimized code will be the input for code generation phase, which is the last phase of compiler. After that, compiler is able to generate object code. As you know, symbol table. So symbol table always uh, connect to each and every phase of compiler, that communicate with each and every phase. So that's it about code optimization. So why we need to optimize the code? See, the thing is, let's suppose we want to write a code for adding two numbers. So the programmer can be used several ways to write the same program, but compiler always optimized that particular code up to a certain level, so that a good and optimized target code is able to generate by the compiler, right? So this is the phase through we can start. If we want to make a new compiler, we need not go from the scratch. We need not start from the scratch. If we want to make a new compiler, we need to design a new compiler using all the previous phases before code optimization phase as the same, and the new thing we need to add from this phase onwards. Optimization techniques need to be changed if you want to make a new compiler. So the question is, why we need to optimize the code? So actually होता क्या है, the intermediate code which is generated by compiler might have some kind of redundancies. Either it is made by machine or it is made by programmer. That redundancies and overhead might be create problem during final code generation, object code generation. So to overcome this situation, this is the pre-last phase of compiler that optimize the code which we have generated or which we have created through a program for compiler. So the finally this optimized code go to code generator, and the code generator generates good code, efficient code, efficient assembly code rather we can say. Now we have several techniques to deal with code optimization. Let's get started with code optimization. So code optimization basically falls into two categories. One is machine independent code optimization and machine dependent code optimization. Sorry, it is written over here independent as well as independent. It should be independent on left hand side and dependent on right hand side. So इसको सही कर लेना आप लोग. So if we talk about machine independent का मतलब ये कि जो कोड मशीन के ऊपर डिपेंड होता ही नहीं है, हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड नहीं होता. मान लो आपने कोई कोड लिखा है, तो उस कोड को जब कंपाइलर ऑप्टिमाइज करेगा
तो वो ये नहीं देखेगा कि वो कौन सी मशीन पे चल रहा है, क्या हार्डवेयर, क्या है उसका स्ट्रक्चर, क्या है एड्रेसिंग मोड, क्या है उसका। उसको तो उस कोड में जो भी रिडंडेंसी दिखाई देगी, एलिमिनेट करना होगा, वो करके रहेगा। सेकेंड वन इज मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट मीन्स डिपेंडेंसी ऑन हार्डवेयर, रजिस्टर एलोकेशन, एड्रेसिंग मोड। डिपेंड करता है कि किस किस मशीन पे आप कर रहे हो। तो डिफरेंट डिफरेंट मशीन का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, आर्किटेक्चर अलग अलग होता है, इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट होने का जो प्रोसीजर है वो भी डिपेंड करता है मशीन आर्किटेक्चर के ऊपर। So if I talk about machine independent code optimization, it again falls in several categories. Number one, loop optimization. This is very important again. Loop optimization means as we know, loop एक प्रोग्राम का वो पार्ट होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो यहाँ पे हमने बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो लूप ऑप्टिमाइजेशन कई तरह का होता है। फर्स्ट वन इज लूप अनरोलिंग, सेकेंड वन इज लूप फ्यूजन, and loop fusion is also known as loop jamming. Third one is loop collapsing. Fourth one is code motion. It is again the part of loop optimization. Code motion is also known as redundancy, frequency reduction. Second one is constant folding. Third one is strength reduction. Fourth one is redundancy elimination. Fifth one is dead code elimination, and sixth one is constant propagation. So these are the machine independent code optimization. On other hand, machine dependent code optimizations are register allocation, using of addressing mode, peephole optimization. peephole optimization में तीन टेक्निक्स होती हैं, चार: redundancy in load store, use of machine idioms, flow control. So we will discuss these machine independent code optimization techniques and machine dependent code optimization techniques one by one. So now today our focus will be on machine independent code optimization techniques. So let's get started. So the first one is machine independent code optimization. The first one is constant folding. Constant folding का मतलब ये होता है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा है x is equals to b plus c plus 1 into 2 plus 3 divide by 5 plus 6 minus c. So हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर मान लो यही इंस्ट्रक्शन किसी फोर लूप के अंदर हो और वो फोर लूप n टाइम्स चले, तो ये जो 1, 2 प्लस 3 है ये आपका कांस्टेंट है। ऐसे ही 5 प्लस 6 जो आपका डिनोमिनेटर में है ये भी आपका कांस्टेंट है। तो ये ओवरहेड क्रिएट करेगा, बार बार इसको इतना एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा इसी इंस्ट्रक्शन का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कंपाइलर क्या ऑप्टिमाइज करेगा इसको, x इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस 5। तो क्या करेगा ये 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 क्या जाएगा 5 जाएगा, 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन विल बी x इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस 5 अपॉन 11 माइनस सी। सो दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट फोल्डिंग। अगेन एक और एग्जांपल यहाँ पे प्रोवाइडेड है आपको, यहाँ पे दो आपके सामने, एक लेफ्ट में फिगर एक राइट में। सो व्हाट द कांस्टेंट फोल्डिंग इज, सिंप्लीफाइंग कांस्टेंट एक्सप्रेशंस एज मच एज पॉसिबल। जो कांस्टेंट एक्सप्रेशंस हैं उनको किस हद तक, किसी एक हद तक जितना हम इसको सॉल्व कर सकते हैं उसको करना है हमने। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैटिक फाइनाइट इंटीजर a इज इक्वल टू 2, इंटीजर b इज इक्वल टू 30 इंटू a। तो फोल्डिंग क्या करेगा, फोल्डिंग करेगा आपको a की वैल्यू 2 कर देगा, और 2 को जब 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली b की वैल्यू क्या हो जाएगी 60। तो इसे बोलते हैं हम कांस्टेंट फोल्डिंग। राइट हैंड साइड में भी देखो आप, इंटीजर f वर्ड रिटर्न 3 प्लस 5। तो इसको क्या ऑप्टिमाइज कोड क्या होगा, ऑप्टिमाइज कोड होगा आपका, रिटर्न करेगा इसको 3 प्लस 5 8 करके। नेक्स्ट आपका जो टेक्निक है वो है कांस्टेंट प्रोपोगेशन। कांस्टेंट प्रोपोगेशन इज इफ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज अ कांस्टेंट देन रिप्लेस द वेरिएबल बाय कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट प्रोपोगेशन। एग्जांपल देखते हैं, डेफिनेशन तो हम देख ही चुके, एग्जांपल देखते हैं। n इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 2, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस s इज इक्वल टू s प्लस i इंटू c। सो इसका ऑप्टिमाइज कोड क्या होगा, इसका ऑप्टिमाइज कोड होगा जहाँ पे भी आपका नंबर लिखा है वहाँ पे वो क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, n की प्लेस पे हमने क्या कर दिया 10 कर दिया। और सिमिलरली हम s इज इक्वल टू s प्लस i इंटू 2 है, i इंटू c है, c के प्लेस पे क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट प्रोपोगेशन। जो भी कांस्टेंट आपने ले रखा है, लिटरल ले रखा है, उस वेरिएबल के प्लेस पे उसको हम रिप्लेस आउट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट प्रोपोगेशन।
ये भी अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंथ रिडक्शन। स्ट्रेंथ रिडक्शन को मैंने एक आध बार क्लासरूम टीचिंग में डिस्कस किया था कि स्ट्रेंथ रिडक्शन का मतलब ये होता है कि जो आप कोड है, आपका जो कोड है उसका विदाउट चेंजिंग मीनिंग उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना है। स्ट्रेंथ रिड्यूस करने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेटर होते हैं और कुछ ऑपरेशन होते हैं, तो जो ऑपरेशन होते हैं उनमें जो एक तो हायर कॉस्टली ऑपरेशन होता है, एक लोअर कॉस्टली ऑपरेशन होता है। फॉर एग्जांपल प्लस और मल्टीप्लिकेशन, इनमें हायर कॉस्टली ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, तो लोअर कॉस्टली कौन है? प्लस। तो ऑलवेज क्या करता है ऑप्टिमाइजर, जो हायर कॉस्टली ऑपरेशन है उसको रिप्लेस आउट करता है लोअर कॉस्टली ऑपरेशन से। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, रिप्लेसमेंट ऑफ एन ऑपरेटर विद अ लेस कॉस्टली वन। For I is equal to 1 to 10, do x is equal to I into 5 and so how the optimized code will be look like? Temp is equals to 5, temp की वैल्यू क्या ले लेगा वो? 5 ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल I is equal to 1 for I is equal to 1 to 10, do x is equal to temp एंड टेम्प इज इक्वल टू 10 प्लस 5। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसको क्या कर दिया उसने, उसने हर बार उसको 5 से इंक्रीमेंट कर दिया, जबकि वहाँ पे क्या हो रहा था आई इंटू 5, तो आई की जो भी वैल्यू थी उसको क्या कर दे रहा था वो सॉरी 5 से मल्टीप्लाई कर रहा था। यहाँ पे क्या कर रहा है, टेम्प की वैल्यू में 5 इंक्रीमेंट कर रहा है। तो ये लूप कितने बार चलेगा? ये लूप चलेगा आपका उतनी बार चलेगा, बट आपका क्या हो जाएगा, आपका जो ऑपरेटर है उसका जो पावर है वो कम हो जाएगा, उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ रिडक्शन। सो टिपिकल केसेस ऑफ स्ट्रेंथ रिडक्शन अकर्स इन एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ एरे रेफरेंसेस। जब भी हम एरे रेफरेंसेस का एरे रेफरेंसेस का एड्रेस कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हमको जरूरत पड़ती है स्ट्रेंथ रिडक्शन की, राइट। या इसका दूसरा भी लिखा हुआ है, अप्लाइज टू एन इंटीजर एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग इंडक्शन वेरिएबल लूप ऑप्टिमाइजेशन। मान लो किसी लूप के अंदर कोई एक्सप्रेशन है आपका, उस एक्सप्रेशन में हमारे पास एक हायर कॉस्टली ऑपरेटर है, तो जब लूप में वो बार बार चलेगा तो उसका जो ओवरहेड है वो और भी बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ेगा। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस कंपाइलर क्या करता है, उस हायर कॉस्टली ऑपरेटर को लोअर कॉस्टली ऑपरेटर में कन्वर्ट कर देता है। इससे काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, बहुत अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है, राइट। नेक्स्ट इज डेड कोड एलिमिनेशन। व्हाट द डेड कोड एलिमिनेशन इज? डेड कोड एलिमिनेशन का मतलब ये आप पे वर्ड समझा रहा है आपको। जो भी आपका कोड है, मान लो आपने कोई कोड, पीस ऑफ कोड लिखा है 10 लाइन का, उसमें कुछ आपने ऐसा कोड लिखा है जो यूजफुल है ही नहीं, तो उस कोड को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, इंट आई इज इक्वल टू 1, ग्लोबल इज इक्वल टू 1, ग्लोबल इज इक्वल टू 2, रिटर्न ग्लोबल इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो भी आपका अनरीचेबल कोड है वो कौन सा कोड है, वो मैं मान के चल रहा हूँ कि ग्लोबल इज इक्वल टू 3, क्योंकि रिटर्न करने के बाद फंक्शन के पास कुछ बचता नहीं है, राइट। तो आपका जो भी कोड जो आपका अनरीचेबल हो या अनयूज्ड कोड हो, उसको अगर हम हटा देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डेड कोड एलिमिनेशन बोलते हैं, राइट। सो आपका कोड क्या हो जाएगा, इंट ग्लोबल वर्ड एफ, ग्लोबल इज इक्वल टू 2 रिटर्न कर देगा, और आपका ग्लोबल इज इक्वल टू 1 और इंट आई इज इक्वल टू 1 ये यूज़ ही नहीं हो रहे हैं, ग्लोबल इज इक्वल टू 3 ये भी यूज़ नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई ग्लोबल इज इक्वल टू 2 नॉट 1। तो यहाँ पे या तो 1 रखो या फिर आप 2 रखो, लेकिन होता क्या है, जो लेटर 1 वाला है वही आपका यूज़ होगा, ग्लोबल इज इक्वल टू 2। तो ग्लोबल इज इक्वल टू 2 इन्होंने रखा है, बाकी इन्होंने क्या कर दिया, अनयूज्ड कोड है उसको हटा दिया। तो अनयूज्ड कोड या अनरीचेबल कोड को हटाना क्या होता है, डेड कोड एलिमिनेशन होता है, राइट। नेक्स्ट वन इज रिडेंडेंसी एलिमिनेशन। रिडेंडेंसी एलिमिनेशन कैसे देखते हैं हम लोग, एक्चुअली मैंने आपको ये नहीं बताया कि कैसे हम एक 3 एड्रेस कोड को बेसिक ब्लॉक्स में ब्रेक करते हैं। तो पहले जो हमारा कोड होता है वो बेसिक ब्लॉक में ब्रेक हो जाता है। जैसे एक छोटा सा कोड है, इस कोड को बेसिक ब्लॉक में ब्रेक कर दिया। अब ये बेसिक ब्लॉक में कैसे ब्रेक कर दिया ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो ये जब बेसिक ब्लॉक में जब इसको हम ब्रेक कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर बेसिक ब्लॉक में अगर कोई रिडेंडेंसी है, मान लो आपका कितने बेसिक ब्लॉक बने, 1 2 3 4, वी हैव 4 नंबर ऑफ बेसिक ब्लॉक्स। मान लो आपका फर्स्ट बेसिक ब्लॉक है, अगर किसी बेसिक ब्लॉक में आपके पास कोई रिडेंडेंसी आ रही है, मान लो
डब्ल्यू इजिकल टू जीरो लिखा आपने, आपने एक और बार क्या कर दिया, डब्ल्यू इजिकल टू जीरो लिख दिया, तो क्या हो जा रहा है, ये रिडेंडेंसी है। तो इस रिडेंडेंसी को जो हम हटाते हैं तो क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिडेंडेंसी एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं, रिडेंडेंसी एलिमिनेशन। सो रिडेंडेंसी एलिमिनेशन इज वेरी सिंपल, या तो आपका रिडेंडेंसी ग्लोबल होगा या आपका लोकल होगा। ग्लोबल का मतलब ये है कि मान लो आपका एक प्रोग्राम है, जब उस प्रोग्राम में थ्रू आउट देखेंगे हम, पूरे प्रोग्राम में अगर कोई रिडेंडेंसी है तो वो ग्लोबल रिडेंडेंसी होगी, तो कंपाइलर को ग्लोबली रिमूव करेगा। अगर आपके पास लोकल है, लोकल का मतलब क्या है कि ये जितने भी बेसिक ब्लॉक आपके बने हुए हैं, इन बेसिक ब्लॉक के अंदर, किसी पर्टिकुलर बेसिक ब्लॉक के अंदर अगर कोई रिडेंडेंसी होगी तो वो होगी लोकल रिडेंडेंसी, तो उसको कंपाइलर लोकली रिमूव करेगा, राइट। नेक्स्ट वन इज, अब हम चलते हैं लूप ऑप्टिमाइजेशन पे। लूप ऑप्टिमाइजेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इसको ध्यान से आप देखें। तो लूप ऑप्टिमाइजेशन में पहला आपका लूप अनरोलिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन। लूप अनरोलिंग क्या होता है, लूप ओवरहेड को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आइट्रेशंस को कम करते हैं। क्या करते हैं, नंबर ऑफ आइट्रेशंस को कम कर देते हैं। और उसको कम करते कैसे हैं, अब आप बोलोगे कि सर अगर हमने जो लूप है उसकी आइट्रेशन को कम कर दिया तो जो भी कोड है आपका उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। मीनिंग नहीं चेंज होगा, हमने जो हमारा पास लूप है उसको इस तरीके से उसकी आइट्रेशन को रिड्यूस करना है कि उसका मीनिंग ना चेंज हो। मीनिंग कैसे नहीं चेंज होगा, उस जो हमारा लूप होता है उसकी जो बॉडी है उसको रेप्लिकेट कर देंगे लोग। अब देखते हैं कैसे करेंगे। मान लो आपके पास एक लूप है, फोर आई इक्वल टू जीरो, 100 टाइम आपका लूप चलेगा, जी फंक्शन को कॉल करेगा। तो मैंने इस जी फंक्शन को क्या कर दिया, दो बार कॉल कर दिया इसी लूप के अंदर, राइट। तो आई इज इक्वल टू जीरो से लेकर के आई इज लेस देन 10, 100 तक चलेगा ये लूप, और आई इज इक्वल टू आई प्लस टू कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये 50 टाइम चलेगा। फर्स्ट में अगर आप देखो तो ये 100 टाइम चल रहा है, जीरो से 100। अब ये सेकंड टाइम क्या करेगा, ये जीरो से टू पे जाए, जीरो से ये किस पे जाएगा, टू पे जाएगा, फोर पे जाएगा, ऐसे करते जाएगा, ये 100 पे पहुंच जाएगा। तो अब ये चलेगा 50 टाइम्स। तो काम उतना ही, इसने जो टास्क थी वही टास्क फर्स्ट वाला लूप परफॉर्म कर रहा था, वही टास्क सेकंड वाला लूप परफॉर्म कर रहा है। बस फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि हमने इसकी आइट्रेशन कम कर दिया। आइट्रेशन कम कर दिया तो इसमें टाइम कम लगेगा और कोड ऑप्टिमाइज हो गया आपका। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन। नेक्स्ट वन इज लूप फ्यूज़न। लूप फ्यूज़न में क्या होता है, हमारे पास अगर कोई दो मेरे पास एडजेसेंट लूप होते हैं, सेम बॉडी के होते हैं, तो उनको हम क्या कर देते हैं, उनको हम इम्प्रूव कर देते हैं, उस कोड को हम उसको एक में ही मर्ज कर देते हैं, एक लूप में। सो लूप फ्यूजन इज सम एडजेसेंट लूप कैन बी फ्यूज इनटू वन लूप, राइट। एग्जांपल देखो, फोर आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 30 300 आई प्लस प्लस ए आई इज इक्वल टू ए आई प्लस थ्री। फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन 300 आई प्लस प्लस बी आई इज इक्वल टू बी आई प्लस फोर। तो ये जो दो लूप हैं ये एडजेसेंट भी हैं और दोनों की बॉडी एकदम सेम है। तो क्या करेंगे, इन दोनों लूप को हम अलग अलग चलेंगे। अब वो पहले वो चलेगा, फिर ये चलेगा, पहले वो 300 टाइम चलेगा, ये फिर 300 टाइम चलेगा। तो क्या कर देंगे, इन लूप को हम सिंगल लूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहला लूप मैंने हटा दिया और दोनों बॉडी एक ही लूप के अंदर आ गई। क्यों, क्योंकि दोनों लूप सेम थे। नेक्स्ट वन इज loop collapsing. Loop collapsing, some nested loop can be collapsed into a single nested loop to reduce loop overhead and improve runtime. Runtime performance को improve करने के लिए जो हमारे पास लूप नेस्टेड लूप्स होते हैं, उन नेस्टेड लूप को क्या करते हैं हम लोग, कोलैप्स कर देते हैं, राइट। उनको हम एक तरह से बोल देते हैं कि एक दोनों लूप को हटा करके एक नया लूप बना लेते हैं हम लोग, राइट। तो ये एग्जांपल आपके सामने, इसमें देखते हैं लूप कोलैप्सिंग कैसे हो रही है। आपके पास एक एरे है, टू डायमेंशन एरे है, 100 इंटू 300 क्रॉस का, 100 क्रॉस 300 का। तो आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन 300 आई प्लस प्लस, फोर इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन 100 एंड जे प्लस प्लस। तो ये पहले 300 टाइम आई का चलेगा, फिर जे का चलेगा 100 टाइम, ठीक है। तो टोटल कितने टाइम चला, ये 30,000 टाइम, 30,000 टाइम। तो इसने क्या कर दिया, इसने इसी लूप को जे को आई से रिप्लेस कर दिया। इसने आई और जे का कंसेप्ट ही ख़त्म कर दिया, इसने जे के प्लेस पे आई को रख दिया और इस लूप को, अकेले लूप को बोल दिया कि ये 30,000 टाइम चलेगा। 30,000 टाइम क्यों चलेगा, क्योंकि 300 क्रॉस 100 कितना होता है, 30,000 होता है। तो 30,000 टाइम चल जाएगा लूप।
तो इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, लूप कोलैप्सिंग बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज लूप ऑप्टिमाइजेशन की अनदर टेक्निक है ये, कोड मोशन, इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी रिडक्शन। कोड मोशन में क्या बोलते हैं, कोड मोशन के अंदर ये बोलते हैं अगर किसी लूप के अंदर हमारे पास कोई ऐसा कोड है जिसको हम बार बार कंप्यूट कर रहे हैं और उसको हम एक बार भी कंप्यूट करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस कोड को हम क्या करते हैं, उस लूप से बाहर ले आते हैं। उससे क्या हो जाता है, आपका ओवरहेड कम हो जाता है। इन फ्रीक्वेंसी रिडक्शन द अमाउंट ऑफ कोड इन लूप इज डिक्रीज्ड। स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन विच कैन बी मूव्ड outside the loop body without affecting the semantic of program is moved outside the loop। सेम चीज जो मैंने बोला वही से बोल रहा है कि अगर किसी लूप के अंदर, मान लो एक लूप है आपका 100 टाइम चल रहा है वाइल लूप, इसके अंदर लिखा है a इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस आई और आई प्लस प्लस, तो इसमें हम ये जो a इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, ये बार बार क्या हो रहा है, ये बार बार चल रहा है आपका, बार बार ये ओवरहेड क्रिएट कर रहा है, 100 टाइम्स ये ओवरहेड क्रिएट कर रहा है। तो अब ऑप्टिमाइज कोड क्या करेगा, इसको एक अलग वेरिएबल में लिख दिया, साइन एक्स अपॉन ऑफ कोस एक्स को टी में लिख दिया और उस a इक्वल टू टी प्लस आई ले लिया, तो ये अब ऑप्टिमाइज्ड कोड हो गया। इससे आपका सिमेंटिक अफेक्ट भी नहीं हुआ और आपका जो कोड है वो लूप के अंदर से कम भी हो गया, तो ये फ्रीक्वेंसी कम होगी, ये बार बार नहीं चलेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, पहले इसकी फ्रीक्वेंसी 100 थी, राइट। सो दैट इज हाउ वी हैव सीन all types of machine independent code optimization. We have completed loop optimization, all type of loop optimization we have seen, constant folding we have seen, strength reduction we have seen, dead code elimination we have seen, redundancy elimination we have seen, and constant propagation we have seen already। So इनको आप एक बार ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें, जो दिक्कत आती है मेरे को आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, right। So tomorrow we will discuss, in upcoming lecture we will discuss machine independent code optimization, right। Thank you।